ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜು ಡಿಜಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ सम्मेलनದ लेजेंडरी टॉक ನಲ್ಲಿ। दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये लेजेंडरी टॉक आज सुपर हिट होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी टॉक ऑफ द नेशन, इट इज गोइंग टू बी टॉक ऑफ द MLM इंडस्ट्री। मैं काफी एक्साइटेड हूं। और तो ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ದಿಗ್ಗಜರು, ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ, ಬಿಗ್ ಲೀಡರ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೈಟಲ್ ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಹಾನ್ ಲೀಡರ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು। दोस्तों, आप सारे लोग इतना कुछ सीखने वाले हैं, उसके लिए कोई हद नहीं रहेगा। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ दोस्तों। ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ನಾನು ನಿಮ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ मीडियाದಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। सॉफ्ट रिमाइंडर, आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ये जो लिंक है यूट्यूब का लाइव सारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका जहां जहां हो सकता है पूरा सोशल मीडिया में आप शेयर कर लीजिए। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं ताकि आप अंत तक रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि लास्ट में बहुत कुछ सरप्राइज है, बहुत बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ। ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಸಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್, ಸೊ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲೀಡರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ। ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವೇವ್, ಕೊರೋನಾ ವೇವ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಮೂರನೇ ವೇವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ। ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 70% ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್। ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೆಲ್ತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್। ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಶನ್। ನಾವು ಏನು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಎಜುಕೇಶನ್, ವೈ ಟು ಡೂ ಮೋದಿ ಕೇರ್, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಂದು ಕೆಂಡ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿಲು ಇದೆ। ಕೆಂಡ ಇದ್ದಿಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ದಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಂಡದ ಪವರ್ ಬರ್ತದೆ। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಬೆಂಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಅದೇ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು। ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ इंपॉर्टेंट। एक जलता हुआ कोयला होता है और बुझा हुआ कोयला होता है। बुझा हुआ कोयला अंदर कैपेसिटी है, पावर है, ताकत है। जब वो टच में आ जाता है, जो जलता हुआ कोयला है और बुझा हुआ कोयला टच होते हुए जो बुझा हुआ कोयला है उसको भी पावर आता है, लाइट आता है, एनर्जी आता है। तो तभी से बहुत बड़ा ताकत मिलता है। अगर वो बुझा हुआ कोयला अलग से रहता है तब वो ऐश हो जाता है, पूरा वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पाउडर हो जाता है, उसके लिए कोई ताकत नहीं है। तो दोस्तों, बने रहना चाहिए, ट्रेनिंग के साथ सीखते रहना चाहिए, यही बड़ा मूल मंत्र है इस बिजनेस में। तो अभी मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जैसा हम हमेशा शेयर करते हैं ये लेजेंडरी टॉक में, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी हम लोगों को दिखा देते हैं। इस फोर्टनाइट का कौन सा बड़ा स्टोरी है हमारा ग्रुप में जो इतना बड़ा जादू किया है, वो स्टोरी आपको अभी दिखा देंगे। जो एक कैटरपिलर से शुरू होते हुए एक बटरफ्लाई बनने का एक बढ़िया सक्सेस स्टोरी मैं आज पेश करने जा रहा हूँ। ಕಂಬಳಿಹುಳುವಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಎಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಪಾಂಡು ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತೇಳಿ। ಇವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ।
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಡತನ, ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 to 13 14 15 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ, ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ, ನೀನು ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ಗಾರು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ನವ್ರ ಹಾವಳಿ, ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10 lakhs ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಸಾಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ 40 50 60 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪಾಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 2,40,000 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಮಿಲಿಯನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾರ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.5 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಓನರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ स्टोरी ಇವತ್ತಿಂದು. इन शॉर्ट हिंदी में मैं बता दूंगा, ये पांडु और पार्वती करके फैक्ट्री में छोटा सा काम करते थे, छोटा सा तनख्वाह मिल रहा था, बहुत बड़ा समस्या था इनका जिंदगी में, बहुत बड़ा बीमार पड़ गया था वो, और उसी टाइम पे लड़ाई किया, संघर्ष किया, 15 साल कुछ भी इनकम नहीं मिल रहा था, फिर भी सारा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे. हर दिन मोटरसाइकिल, उसके पहले तो किराए का साइकिल होता था, वो इतना बुरा हालत था उस साइकिल का, कहीं पे भी वो खड़ा कर देता, पार्किंग कर देता था, उसको कोई टच तक नहीं करते थे. इतना बुरा बेकार एक साइकिल होता था. उस साइकिल से वो शुरू किया था. तो बहुत ही मेहनत किया इन्होंने. हर दिन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक फील्ड वर्क करते थे पार्ट टाइम में. अभी बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया. इनका जो सब्र था, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य को खड़ा किया है. दोस्तों, आजकल महीने में करीबन 2.5 लाख तक कमाई होता है. 6 मिलियनर्स को क्रिएट किए हैं. 12 लाख की कार का अचीवमेंट किया है. छोटा सा घर लिया है बेंगलुरु में. अभी 1.5 करोड़ का संपत्ति पाने के लिए प्लानिंग करके रखा है, घर मालिक बनने के लिए. इनसे क्या सीख सकते हैं? सबर, पेशेंस, ऑलवेज पेस. हमेशा फील्ड वर्क करते रहे, हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते रहे, हमेशा बूट कैंप करते रहे. बहुत सारा लॉसेस भी होता था बिल्डअप होने में, मगर कभी पीछे नहीं हटा. GBD क्रिएटर बन चुके हैं. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ GBD ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇವರು ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ GBD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಂಡು ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ GBD ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ कंग्रेचुलेशंस. सो इसी के साथ दोस्तों, अभी वो जो इंतजार का घड़ी, वो टाइम अभी आ गया है. हम अभी आपको बुलाना चाहेंगे, आप सबके साथ पेश करना चाहेंगे. मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि हम इंडस्ट्री का जो भी बड़ा नेटवर्कर, इनको इतना बड़ा इज्जत करते हैं, इनको इतना बड़ा टाइटल लोगों ने दिया है कि ये मोदी केयर में, मोदी केयर का दिल है, धड़कन है, मोदी केयर का आत्मा है, मोदी केयर का मेन पिलर है और यूनिवर्सल अपलाइन कहलाता है इसको. लाखों लोगों का दिल में राज करने वाले हमारा बड़े भाई का समान है और इतना सबको प्यार करते हैं, इतना कुछ इज्जत प्यार मिलता है इन्हीं को. और 23 साल पहले कुछ नहीं था मोदी केयर में, आजकल इतना बड़ा हासिल किया है सर ने और हमारा भाई. इनका हालत इतना खराब हो गया था कि 25 साल पहले इन्होंने 35 से ज्यादा बिजनेस को कोशिश किया, जॉब को कोशिश किया, कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिला. इतना बिगड़ गया था, इतना लोन में फंस गए थे, कर्जा में फंस गए थे. उस टाइम पे तो एक बार खुदकुशी करने के लिए भैया ने सोचा था. तो थैंक्स टू गॉड, इनको कुछ अच्छा मतलब बुद्धि दी. किसी ने LIC का एक ऑफिसर ने इनको मौका दिया. उस टाइम पे विजन देखा और भुवनेश्वर से मुंबई जाते थे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, दिल्ली जाते थे, सारा समर्पित करते हुए. उस टाइम पे कुछ सुविधा नहीं था,
सर टिके रहिए बिजनेस में, सारा ट्रेनिंग अटेंड करके आजकल नेटवर्क मार्केटिंग का बापू बन गए हैं। इसको तो भीष्माचार्य कहलाते हैं, द्रोणाचार्य कहलाते हैं मोदी केयर का। तो अभी इन बड़ा हस्ती को हम वर्चुअल स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಫೇವರೇಟ್ ಇವರು. ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗೆ, ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞ, ಸೂಪರ್ ಮೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು GBD ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ಮೇರಾ ಬಡಾ ಭಾई के समान है. तो with all the honor and respect, I would like to invite और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड स्मैक मेंबर, एंड इनका बहुत सारा टाइटल है. हम हमारा वर्चुअल स्क्रीन पर वर्चुअल डिजिटल कर्नाटका को और ऑल ओवर इंडिया मोदी केयर को हम बुलाना चाहेंगे. विथ थंडरिंग अप्लॉज, लेट अस इनवाइट ऑन द वर्चुअल स्क्रीन मिस्टर प्रमोद आचार्य जी. भैया हेलो, भैया नमस्कार. नमस्कार भाई, नमस्कार दोस्तों. नमस्ते भैया, तहे दिल से आपका स्वागत. तो हम लाखों लोग काफी एक्साइटेड है. अभी तो बहुत सारा हजारों लोग लाइव आ चुके हैं आपका दर्शन पाने के लिए, आपसे सुनने के लिए. हम बहुत खुश नसीब है हमारा भैया, आपका दर्शन होते हुए आपसे सीखने के लिए बड़ा मौका मिला है. तो आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं भैया. थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू कर्नाटक लीडर्स. सो स्पेशल थैंक्स टू बिकॉज फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन, राइट. दोस्तों, मैं एक आपको यही बताना चाहता हूँ, रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर कर्नाटका लीडर्स बिकॉज कि आप लोग जिस तरीके से बिजनेस बिल्ड करते हो, जिस तरीके से बिजनेस बिल्ड करते हो, एक महीना में 30 करोड़ की बिजनेस. बहुत बहुत बधाई हो राजू जी, नीना जी, फिलिप जी एंड ऑल द लीडर्स ऑफ कर्नाटका. रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर यू. राजू जी, क्या आप बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया है भैया, आपका आशीर्वाद है. बस बहुत बहुत लंबा समय हो गया आपके साथ फिजिकल दर्शन तो नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ है. हम तड़प रहे हैं, हम बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं. और हमारा डिस्कशन शुरू करने के पहले आपको एक स्पेशल चीज के लिए आपको तारीफ करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. जो कई 5 साल पहले 9 साल पहले मोदी केयर बहुत संघर्ष कर रहा था, उस टाइम पे पुराना प्लान था, और कर्नाटक का लीडर, खास करके उड़ीसा का लीडर बहुत अच्छा नेतृत्व लिया, और खास करके प्रमोद भैया का लीडरशिप में मैनेजमेंट को, समीर सर को समझाया कि नया प्लान का जरूरत है, इनोवेटिव प्लान का जरूरत है. ऐसा आपने, आपका लीडर्स ने, सारा उड़ीसा लीडर्स तो समझा दिया. इसीलिए नया प्लान आया. वो प्लान आने के बाद हजारों मिलियनर्स बन चुके हैं, लाखों लोगों को बहुत बड़ा आजादी मिल रहा है. उसका मेन क्रेडिट हमारा प्रमोद भैया को जाता है, पूरा एंटायर सीनियर लीडरशिप ऑफ प्रमोद भैया जी और कर्नाटका का बहुत सारा सीनियर लीडर्स को जाता है. सो स्पेशल धन्यवाद भैया आपको. थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच. बट मे बी उससे पहले मैं आपको थैंक देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अभी याद है जब उड़ीसा की बिजनेस डाउन जा रहा था, तो मैं गया था आप लोग के पास सीखने के लिए. मैं फिलिप जी का पास बैठा, नीना जी का पास बैठा, आपकी ऑफिस को गया. मैं सीखा कि आप किस तरह वो बिजनेस बिल्ड करते थे. फिर जगदीश भाई का घर गया, वहाँ डेमो भी सीखा, जगदीश भाई कैसे डेमो करते हैं. तो फिर जब आप लीडरशिप को देखा, आपको देखा, फिर विजय जी को देखा, तब तो जब हम स्ट्रगल करते थे, प्रशांत जी थे, प्रशांत जी बहुत बहुत मेहनत करते थे ताकि कंपनी का बिजनेस कैसे उठ जाए. मेरा अभी याद है चंद्र जी पूरा चैंपियन की तरह काम करते थे, आज तो भी चैंपियन भी है, क्योंकि चंद्र जी का जो काम करने का स्टाइल था ना, ये रियली इट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव. एंड ऑल द डीलर्स, नटराज भाई की अगर बात करते हैं, फिर मंजुनाथ सेठी जी, वो तो मेरा हीरो है और मैं उसका फैन हूँ, राइट. और उसके बाद धीरे धीरे फिर संतोष जी आए, बाकी सब लीडर आ गए, फिर मधुसूदन जी आए, सुग्रा दीदी वहाँ रहते, विजयलक्ष्मी मैडम भी वहाँ रहते. मैं आप लोग से सबसे सीखा. मैं मानता हूँ कि जब ये बिजनेस ऐसा होता है, कभी कोई बिजनेस गिरेगा, कभी कोई बिजनेस थोड़ा डाउन भी जाएगा. और मेरा अभी भी याद है जैसे आप लोग का जो मॉर्निंग क्लास कर रहे थे, मैं गया था आपसे सीखने के लिए. फिर अम्बेडकर भवन में आप मीटिंग कर रहे थे, टाउन हॉल में मीटिंग करते थे. मैं जो आप सबसे सीखा ना, फिर आके उसको मैं काम पे लगाया, मेरा लोगों को सिखाया. और ये जो मार्केटिंग प्लान की जो बात आता है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स. क्योंकि पुराना लीडर, मैं मानता हूँ बहुत कुछ तकलीफ उठाए थे ये बिजनेस को संभालने के लिए. और उसके साथ साथ नया लीडर भी आ गए. वो भी नया लीडर आने के बाद फिर हम लोग का हौसला बढ़ा. पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान की और बात करते ना, तब तो क्या था, कर्नाटक, उड़ीसा और सूर्यखामम और मुंबई में थोड़ा बहुत, देन पांडे जी और अरुण कुमार जी,
बस इस तरह संभल कर हम चलते थे। रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर द कर्नाटका। पता नहीं जब मैं आप लोग के साथ मिलता हूँ, जब कभी भी बैंगलोर जाता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं अपना स्टेट को आ गया और अपना घर जैसे आ गया। थैंक यू सो मच कि बहुत बहुत आप मदद किए। तब मैं आज ये भी जो बताऊंगा, जो भी मैं आज हूँ ना, मेरा ऑफलाइन का तो सपोर्ट है ही है, मगर कर्नाटका लीडर की इतना सपोर्ट है, मैं इतना आप लोग से सीखा हूँ और इंस्पायर हुआ आप लोग से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी कर्नाटका लीडर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। एक चीज मैं कन्नಡ में बोलना चाहूंगा, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋದ್ ಭಯ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು. ಆ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. हाँ प्रमोद भैया, आपका यादगार मेमोरी पावर इतना अच्छा है कि सारा सीनियर लीडर्स जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है उनका नाम अभी ले लिया आपने, तो धन्यवाद आपको। तो बहुत अच्छा लगा, आप इसीलिए आपको इतना बड़ा इज्जत मिलता है, इतना बड़ा दिल वाले आप हो, और ऑल ओवर इंडिया का लोगों से पूरा, नॉट ओनली मोदी के, पूरा एमएलएम का दुनिया से आपको इतना बड़ा इज्जत आप पाते हो, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है भैया। तो हम शुरू हो जाएंगे भैया कि हम जानना चाहेंगे आपका इन शॉर्ट क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा और कैसा आपका ज्वाइनिंग हुआ मोदी केयर के साथ, और उसके बारे में थोड़ा आप हमको बता दीजिए भैया। ओके ओके, बस मेरा जिंदगी का आम इंसान की तरह है, जैसे आम इंसान की लोगों की ज़िंदगी होती है ना, इस तरह है। मैंने गांव में पैदा हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ा, और मेरा एक्चुअल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई को छोड़ के जितने हर काम, हर चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैं क्लास 8 में था, तब मेरा समझ में आया कि हमारा परिवार में पैसा की दिक्कत है। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी के इंजीनियर थे, मगर हमारा फैमिली की बर्डन इतना था, कमाने वाले अकेला थे मेरा पिताजी, और हमको परिवार चलाने में 15-16 लोग। तो मुझे समझ में आ गया था कि बिजनेस मुझे करना है, हमारा घर में तकलीफ है, बिजनेस करके मुझे पैसा कमाना है। तो फिर उसके बाद मैंने बिजनेस, पढ़ाई के बाद, इस पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था नहीं, और कॉपी करके मैंने ग्रेजुएट बना, हर एग्जाम में कॉपी करके ग्रेजुएट बन गया। फिर आया, मैं बिजनेस शुरू किया। फिर बिजनेस शुरू करने के बाद ज़िंदगी की हर तकलीफ, दोस्तों मेरा ज़िंदगी की हालत इतना बुरा था ना कि कोई भी बात ले लो यार, पास में पैसा नहीं था, भूख में रहना पड़ता था, गरीबी, तकलीफ, अपमान, बेइज्जत, दर्द, ये सब कुछ देख के मैं आ चुका था। इससे भी दिन था दोस्तों, मैं सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट भी किया था। फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था, बिल्कुल अंधेरा लगता था, समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। मैं रोज़ मेहनत करता था कम से कम 15 से 16 घंटा, मगर फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था। मैं जो कर्जा में फंसा हुआ था, वहाँ से निकलने के लिए मेरा पास कोई रास्ता ही था नहीं। मैं भगवान को हमेशा प्रे करता था, भगवान आज एटलीस्ट मुझे एक चांस दो, ताकि मैं मेरा कर्जा चुका सकूँ, मेरा परिवार के लिए कुछ खास कर सकूँ, और मैं खुद को प्रूव भी कर सकूँ। क्योंकि मार्केट में पैसा उधारी ले लेकर मैं इतना बेइज्जत हो गया था। लोगों ने बोलते थे कि इनका ज़िंदगी बेकार हो गया, एक ठग है, पैसा लेता है देता नहीं। मैं सच में खुद को प्रूव करना चाहता था। रोज़ सुबह शाम में सोने से पहले और उठने के बाद में भगवान को प्रे करता था, भगवान एक चांस मुझे दो। मैं कहावत सुना था कि कुछ लोग, हमारा गांव में कुछ लोग बोलते थे कि भगवान हर एक इंसान को एक ना एक बार मौका जरूर देता है। वो विश्वास मेरा मन में था। और एक दिन, इफ आई टॉक अबाउट 23 ईयर्स बिफोर, इन द ईयर 1998, मैं गया था LIC पॉलिसी करने के लिए, और वहाँ मुझे मौका मिला मोदी केयर जो लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनने के लिए। इनिशियली आई डिसबिलीव्ड, देन जब मैं डिटेल से समझा ना मोदी केयर बिजनेस को, तो मैं कन्फर्म हो गया था। दैट डे आई बिकम कन्फर्म, 100% कन्फर्म था कि ये बिजनेस के जरिए मेरा ज़िंदगी बदलेगा। सिर्फ मेरा ज़िंदगी नहीं, कई हज़ार लोगों की ज़िंदगी बदलेगा। तो बस इसलिए मैंने इंटरेस्टेड हुआ बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। मगर तब लगता था 1250 रुपये ज्वाइनिंग में, पास में था नहीं मेरा पैसा। मेरा LIC DO से उधार लाके मैं बिजनेस ज्वाइन किया। मेरा बीवी मना करती थी करने के लिए, दोस्तों को मना करते थे, मगर आई डिडंट लिसन टू एनीबडी एल्स, बिकॉज आई वॉज 100% कन्फर्म दैट माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज थ्रू दिस बिजनेस, राइट। सो बस यही था मेरा शुरुआत। हाँ भैया, बहुत एक्साइटिंग है। जैसा हर एक मिडिल क्लास इंडियन का जो स्टोरी होता है, ऐसे ही आपका भी, और भगवान के ऊपर विश्वास रखा, भगवान का रूप में मोदी केयर आपका जिंदगी में आया। तो थैंक यू भैया, ये आपका बैकग्राउंड शेयर करने के लिए। और शुरुआत में भैया कि प्रोडक्ट बहुत कम होता था मोदी केयर में, उस टाइम पे कोई DP नहीं होता था, 23 साल पहले। अभी तो इतना सारा प्रोडक्ट है, फिर भी लोग जो प्रोडक्ट नहीं है उसी के ऊपर हाथ डालता है और आंख डालता है, वो प्रोडक्ट नहीं है ना, ऐसा पूछ लेते हैं।
तो उस टाइम पे ऐसा कैसा संभाल लिया भैया? उस टाइम पे प्रोडक्ट बहुत कम होता था, तो कैसा ओके, मैनेज किया आपने? इसका नाइस क्वेश्चन। मेरा मानना हमेशा थोड़ा अलग तरीके से हमेशा होता है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक दुनिया में बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, सॉरी कुछ लोग देखे होंगे जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस करते हैं, चाहे वो आलू हो या प्याज हो या जूते का दुकान हो। लोगों ने एक प्रोडक्ट को बेच के उसका ऊपर बिजनेस करके लाखों करोड़ में कमा लेते हैं। अरे भैया, तभी तो हमारे पास 6-7 तो प्रोडक्ट था। तो मुझे लगा अगर एक प्रोडक्ट को लेके एक इंसान लाखपति बन सकता है ना, तो 4-5 प्रोडक्ट को लेके भी एक इंसान करोड़पति बन सकता है। तो यही सोच मेरा दिमाग में था, मैं लोगों की वही बोल के चला। और आजकल का लोकल बहुत लॉकी है, सब कुछ सुविधा है, प्रोडक्ट तो अभी 400-500 से। और आने वाला दिनों में भैया, आने वाला दिनों में तो लोगों ने, मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में सुई से लेके कार तक मिलेगा मोदी का नेटवर्क मार्केटिंग जरिए में। राइट, तो ये मेरा माइंड सेटिंग था यार कि 4-5 तो प्रोडक्ट है। तो इसीलिए मैं तो एक्साइटेड था यार, मैं लोगों को ही बोल रहा था। कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग नहीं सुनते थे, मगर मैं काम करते चला। मेरा बिलीव था कि एक ना एक दिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सही है भैया, हाँ, बहुत अच्छा बात किया आपने कि एक प्रोडक्ट से कितना बड़ा जादू हो सकता है। एक एक कंपनी, एक एक प्रोडक्ट चलाते हुए बहुत बड़ा कंपनी फॉर्च्यून 500 तक गया है। ऐसे ही विश्वास रखा, विजन आपको इतना कुछ ताकत दिया। जैसे आपने बोला, सुई से कार तक अभी मोदी केयर में प्रोडक्ट आएंगे। भैया, आपके लिए अभी एक सरप्राइज है, और एक बड़ा लीडर आपसे अभी मुलाकात करते हुए आपको इंटरेक्शन करने के लिए, तो हमने अभी इनवाइट करना चाहेंगे हमारा गुरुमा और मेरा केयर टेकर, गार्ड मदर, ऑल ओवर इंडिया वेरी वेरी पॉपुलर लीडर, one of the finest leader, and again she has a generous heart and global black diamond a SMAC member also। नीना मैडम को हम प्रेजेंट करेंगे भैया, वो आपसे आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहेंगी। सो ओवर टू नीना मैडम। वेलकम नीना मैडम। Thank you, Raju. Thank you so मैडम much. नमस्कार। नमस्कार नीना मैडम, नमस्कार। प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। आप आए हमारे चैनल पे लीडर्स ऑफ कर्नाटका को मैसेज देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके बारे में तो क्या कहना प्रमोद जी, होल ऑफ इंडिया नोज यू सो वेल। और आप एक ऐसे लीडर हैं जो फाइनेस्ट रोल मॉडल हैं, क्योंकि आपने ना सिर्फ बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन एथिक्स के साथ बिल्ड किया। अपने मोरल को नहीं छोड़ा आपने हमेशा यही देखा कि कैसे मोदी केयर बिजनेस को मैं करेक्ट सही ढंग से करूं, जैसे कि समीर मोदी हमेशा चाहते हैं। समीर मोदी जी भी हमेशा यही कहते हैं कि बिजनेस करो तो सही ढंग से करो। तो ये आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। सो थैंक यू सो मच प्रमोद जी आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Raju, Vijay, to giving me this opportunity to, interact with Pramod ji. Thank you so much. मेरे ये दो बच्चे जो है ना, बहुत ही कमाल के हैं, इतने अच्छे हैं। कहते हैं कि ये ना हर कुछ इतने अच्छे नजरिए से देखते हैं कि उनको अच्छा ही नजर आता है। तो कहते हैं अगला इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये राजू विजय तो वो परफेक्ट रोल मॉडल है। तो थैंक यू राजू विजय, आपने इतना अच्छा मुझे मौका दिया टू इंटरेक्ट विद प्रमोद जी। ही इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, माय फेवरेट, एंड थैंक यू वेरी मच। तो नीना मैडम, ये सब आपका देन है मैडम। तो वट एवर वी आर टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ यू। यू आर लाइक आवर सेकंड मदर। आप अगर हमको ये मौका नहीं दिया होता तो हम अंधेरे में फंस जाते थे। हमारा जिंदगी इतना उजाला हो गया आपकी वजह से, डॉक्टर फिलिप सिंह सर की वजह से, सुरेखा मैडम की वजह से, और समीर मोदी सर की वजह से, तो प्रमोद भैया का आशीर्वाद की वजह से हमारा जिंदगी इतना कुछ चेंज हुआ है मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम। वेलकम टू यू राजू, थैंक यू सो मच। तो प्रमोद जी, आपका आपके चाइल्डहुड के बारे में, कैसे मोदी केयर में आए, ये तो हमने सुना है। और यस, हमेशा हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि देखिए कि थैंक गॉड, गॉड शोड यू एन अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। तो मोदी केयर डेफिनेटली आपके लाइफ में आया और बहुत कुछ बदलाव लेके आया। तो मैं आपसे ये डेफिनेटली पूछना चाहती हूँ कि फ्यू इयर्स बैक हमने सबसे पहले सुना था pramodachar.com, करेक्ट? आपने शुरू किया था एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तब तो इतना नहीं था मोदी केयर का नाम ऑनलाइन पे, तो आप ही ने शुरू किया इसका, शुरुआत तो आप ही से हुआ। तो इतना अच्छा आप अभी ट्रेनिंग्स है, एजुकेशन सिस्टम है आपके ग्रुप में, तो आपको क्या लगता है कि क्यों एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में? ओके, इट्स अ नाइस क्वेश्चन।
देखिए हर एक चीज़ हम लोग और बचपन से अभी तक देखेंगे ना, हर एक चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं, चाहे कंघी करना हो, ड्रेस पहनना हो, या एबीसीडी लिखना हो, राइट, और बात करना है, हम लोग ट्रेनिंग लिए, या साइकिल चलाना हो, मोटरसाइकिल चलाना हो, बिकॉज विदाउट ट्रेनिंग नथिंग कैन बी डन। आप एक एग्जाम्पल लीजिए ना, कोई इंजीनियर के बारे में एक एग्जाम्पल लीजिए। एक इंसान +2 के बाद एक इंजीनियरिंग करते, इंजीनियरिंग 4 साल 4.5 साल की इंजीनियरिंग करते, फिर पढ़ाई के बाद जब जाते हैं ना नौकरी करने, तनख्वाह कितना मिलता है? 40, 50,000, 70,000, 1 लाख। अगर एक इंसान, मेरा जो सोचना है तरीका मैं आप लोग ही बताना चाहता हूँ, अगर एक इंसान 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग लेता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हमारा बिजनेस तो मौका है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाने के लिए, तो हमको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग ट्रेन नहीं होंगे तब तक हम लोग सही तरीके से काम कर नहीं सकते। मैंने फिर आप लोग से भी सीखा ना मैम, कि मैं जो गया था आपकी घर की मॉर्निंग क्लास कैसे करते हो, ये सब मैं सीखने के लिए गया था ना। ये ट्रेनिंग जो ठीक है मैं ऑनलाइन शुरू कर दिया था, तब इतना तो आइडिया नहीं था। मेरा एक नेफ्यू वो बताया कि ऑनलाइन करो, मैं थोड़ा कर दिया था, मगर फैक्ट है ट्रेनिंग में आप लोग से सीखा, सुरेखा मैम से सीखा, हमारा कंपनी से सीखा, राइट। ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पूछेंगे बिना ट्रेनिंग में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ऐसे, जैसे मानो कि गांव में कोई कैरम खेलता है, वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग में हो जाएगा, चैंपियन बनने के लिए आपको स्पेशल कोचिंग लेना होगा। हर चीज में से होता है। तो ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। अदरवाइज जैसे कि हम कला चला सकते हो 5-10 कमाने के लिए, ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। और लाखों के अगर गेम खेलना चाहते हो तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बोले प्रमोद जी। जैसे आपने कहा, अगर हम मीडियोकर बनना चाहते हैं, ओके बनना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग ठीक है, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अगर चैंपियन बनना चाहते हैं तो ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। बहुत खूब कहा प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, ऑफ कोर्स वी नो, लेकिन उन सब में थोड़ा बताइए, और आपका जो सबसे स्पेशल अचीवमेंट था, जो आपको बहुत डियर था, वो कौन सा है मोदी के? ओके, अचीवमेंट बारे के तो ये बस इतना ही बताना चाहता हूँ। मैं 2 लाइनें बताना चाहता हूँ। अगर मुझे 23 साल पहले कोई बोला होता कि देख प्रमोद, आने वाले 23 साल के बाद तेरा मंथली इनकम होगा 30 लाख से 40 लाख होगा मंथली इनकम, तो 7 मकान, सॉरी 7 गाड़ी तो चेंज करेगा, मर्सिडीज चलाएगा, 5 मकान बनाएगा, 22 बार फॉरेन जाएगा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके, और तेरे वजह से बहुत सारे लोगों ने लाखपति बनेंगे। सच में नीना मैडम, ये बात मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। तो बिजनेस में मेरा अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट की बात के बारे में बताऊंगा, जब मैं, पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं होंगे, मेरा लव मैरिज है। मेरा बीबी को मैरिज से पहले बहुत कमिटमेंट किया था कि मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मगर प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर। बट जब बिजनेस मुझे मिला ना, मुझे मिल गया कि कम से कम मेरा बीबी बच्चे को मैं दुनिया की हर खुशी दिला सकता हूँ। तो जब मैं पहली बार कमाया था 1 लाख रुपया, वो तो मैंने बहुत खुशी था। और हर चीज़ मोदी की वजह, हर चीज़ मेरे लिए स्पेशल था। चाहे मर्सिडीज खरीद करना, विदेश जाना, फ्लाइट में बैठना, सब कुछ मेरे लिए स्पेशल था। और सबसे बड़ी खुशी मुझे लगा जब ये बिजनेस के जरिए मेरा तो ज़िंदगी बदलता है, और उसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगी बदलता है। वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता था, और आज भी देता है वही खुशी। बस यही है कि स्पेशल तो हर चीज़ स्पेशल है। एक आम इंसान निकल देखो, फ्लाइट में बैठना, फॉरेन जाना, लाखों की इनकम करना, 30 लाख 40 लाख मुझे जब मिलता है ना, मुझे हर महीना कमीशन, मुझे कभी कभी अजीब सा लगता है कि कैसे क्या हो गया ये मोदी का, कि बिजनेस ऐसे क्या कर दिया कि हमारे जैसे आदमी 30 लाख 40 लाख हर महीना कमाते हैं। सो एवरीथिंग स्पेशल फॉर मी, एवरीथिंग सो स्पेशल फॉर मी। आज मैं जो भी हूँ ना मैम, जो भी हूँ आज मैं मोदी की वजह से हूँ। वेरी ट्रू प्रमोद जी। इनफैक्ट आपने अभी बताया कि जब आपकी शादी हुई, आपने अपनी वाइफ को इतना कुछ प्रॉमिस किया, तो यानी कि आपके इंटेंशंस तो बहुत अच्छे थे ना। और कहते हैं जब इंटेंशंस अच्छे हैं वहां भगवान तो होते ही हैं। तो देखिए, बस मुझे तो लगता है बस वही हुआ कि आपने जो जो इतने अचीवमेंट्स पाए लाइफ में, एवरी टाइम यू हैव डन इट विद अ गुड इंटेंशन। आपने, हमें पता है कि आपने कभी नहीं सोचा कि ये मुझे मिल जाए, आपने हमेशा यही सोचा कि मेरी टीम को क्या मिल सकता है, और उसकी वजह से यू आर देयर एट द टॉप। यस, थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी। ओवर टू यू राजू। थैंक यू नीना मैडम। प्रमोद भैया, बहुत अच्छा सीख मिल रहा है हमें। तो शुरुआत में ही आपने सिक्सर और चौका मारना शुरू कर दिया है।
तो मेरे को लगता है ऑल ओवर इंडिया में सारा हमारा दर्शक, हमारा लीडर्स लोग बहुत पसंद करते हुए बैठे हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा प्रमोद भैया कि आपका इतना सारा जो आपने सक्सेस सीक्रेट तो बहुत कुछ हो सकता है भैया, आपका तो सैकड़ों हो सकता है, उनमें से इतना बड़ा हासिल करने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, जीबीडी का फैक्ट्री बन गए हो, इसका क्या मेन सीक्रेट क्या है भैया? मेन जो सक्सेस का मूल मंत्र क्या है आपका भैया? इट्स अ रियली वेरी नाइस क्वेश्चन स्पेशली फॉर मी बिकॉज जब मैं जिंदगी में स्ट्रगल करता ना राजू भाई, जब मैं जिंदगी में स्ट्रगल करता था, मेरा जिंदगी की स्ट्रगलिंग या जिंदगी की हालात मुझे सिखा दिया कि लोगों के लिए अगर काम करेंगे, यहाँ आपको कामयाबी मिलेगा, खुशी मिलेगा, मेंटल पीस भी मिलेगा। ये मेरा जिंदगी की हालत मुझे सिखा दिया था, क्योंकि बार बार मैं ठोकर खाया था, बार बार बेइज्जत हुआ था, और बार बार मैंने कभी भी अगर लोगों ने कुछ करता था थोड़ी प्रेज मिलता था, और ये सीख मुझे मिला था कि दूसरे के लिए काम करो। दूसरे के लिए काम करने से आपको पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, लोगों की प्यार मिलेगा। बस मेरा हमेशा यही कोशिश है, और भगवान की दया से ऐसे के बिजनेस मिला जहाँ मुझे समझ में आ गया कि लोगों को मदद करेंगे तो खुद पैसा कमाएंगे, और लोगों को आपको रिस्पेक्ट देंगे तो फिर भी आपको लोगों की प्यार मिलेगा, लोगों की सक्सेस, माने लोगों की जब सक्सेस कराएंगे आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ मिलेगा। और ये नहीं कि हमेशा मैं आपको खुल के चीज़ बताना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल यूर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होता होगा और गलती होता ही भी है। देखिए हर चीज़ सैक्रिफाइस करने के बाद भी हमारा परिवार में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, राइट, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इस तरह ग्रुप में कभी कभी होते रहता है। मगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है इसमें गलती किसका नहीं है, इसे नेचुरल प्रोसेस। मगर हमारा सोच रहेगा ना लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए भला करना। और कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो लोगों ने समझ जाएंगे, फिर बाद में करीब आ जाएंगे, राइट। यही है, कुछ स्पेशल नहीं है। मैं लोगों के लिए लोगों की सक्सेस के लिए मैं काम करता हूँ और लोगों की प्यार मिलता है, बस यही है बस। हाँ भैया, आपने जो बोला है उसको आप जिंदगी जीते हो, और जैसा नीना मैडम ने बोला एथिक्स के बारे में, तो इतना सपोर्ट करते हो आप और लोगों को भलाई चाहते हो, सपोर्ट करते हो। तो दोस्तों आपको एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा हुआ है कर्नाटका में कई प्रोस्पेक्ट प्रमोद भैया को मिले हैं, वो स्पॉन्सर नहीं करना चाहते हैं। प्रमोद भैया मेरे को बोलते हैं राजू आप स्पॉन्सरिंग कर लो, मैं जिद्दी करता हूँ नहीं भैया आपका नीचे मैं स्पॉन्सरिंग करता हूँ। प्रमोद भैया बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं करना यार, तुम ले लो, तुम किसी को दे दो, मंजुनाथ शेट्टी को दे दो, कोई अपना चंद्रू को दे दो, ऐसा बोल देते हैं। तो आजकल तो मतलब इतना क्रॉस लाइनिंग चलता है एमएलएम का दुनिया में, मोदी केयर में थोड़ा कम है, फिर भी आपसे मतलब मैं आपका डाउनलाइन नहीं हूँ, फिर भी डाउनलाइन से ज्यादा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। आप कहीं पे भी, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अगर यूपी में मिलेंगे तो आप पांडे जी को दे देंगे, गुजरात में मिलेंगे तो वहां पे अल्पेश जी को दे देंगे। ऑल ओवर इंडिया में लोगों को मतलब प्रोस्पेक्ट्स को बांटना चाहते हो, यू बिलीव इन शेयरिंग एंड केयरिंग, यही आपका सबसे खासियत मूल मंत्र मैं समझता हूँ भैया, थैंक यू वेरी मच। और एक पर्सनल को सवाल पूछना चाहूंगा भैया कि आप मतलब पता चला मेरे को आपका एज 63 है, फिर भी आप यू लुक लाइक 36, तो मतलब 60 एज उम्र होने के बाद तो लोग समझते हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो गया, अभी तो आराम से बैठ के जिंदगी जीना है, जिंदगी काटना है, ऐसा लोग समझते हैं। आज भी इतना आप स्मार्ट लग रहे हो, और आपका ये सीक्रेट क्या है भैया, इतना जो पैशन जुनून और ये जो मतलब यंग जैसा लगते हो, इसका सीक्रेट क्या है प्रमोद भैया? ओके, एक्चुअली क्या बचपन में सुना था कि हेल्थ इज वेल्थ, मगर जिंदगी की हालत मुझे इससे बना दिया था कि हेल्थ केयर करने के मुझे टाइम नहीं मिलता था। जब मोदी कर में थोड़ी बहुत पैसा आने लगा तो फिर एक बार बैठ के सोचा मैं पैसा तो कमा लूंगा आने वाले दिनों में, अगर मेरा हेल्थ नहीं रहेगा उसको एंजॉय करने के लिए तो मैं क्या करूंगा पैसा लेके। तो धीरे धीरे थोड़ी वॉकिंग भी, कभी कभी वॉकिंग करता हूँ, कभी कभी एक्सरसाइज करता हूँ। और हमारा मोदी कर में इतना फूड सप्लीमेंट है ना, रोज की मैं बात करता हूँ, रोज मैं 3 बार पीता हूँ ग्रीन टी, और थोड़ा वॉकिंग को जाने से पहले मैं एक जिंक्सिंग टैबलेट ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आने के बाद प्रोटीन और प्रोटीन केस्ट मिला के मैं दिन को 2 बार पीता हूँ। अराउंड 60 ग्राम प्रोटीन में लेता हूँ, प्रोटीन केस्ट मिला के लेता हूँ 60 ग्राम रफली, 50 to 60 ग्राम। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद मल्टीविटामिन लेता हूँ, कैल्शियम लेता हूँ। बस यही है मोदी का फूड सप्लीमेंट, थोड़ी माइंड सेटिंग, क्योंकि बार बार स्टेज को जाना पड़ता है। अगर मैं फिट होकर स्टेज को नहीं जाऊँगा, लोगों के पास में खड़ा होकर क्या करूँगा अगर मैं खुद का हेल्थ केयर नहीं करता हूँ। तो कल ही मेरा मीटिंग था, मैं लोगों को बता रहा था कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये सोच आ जाएगा दिमाग को ना, तो ऑटोमेटिकली एक आदमी अच्छा हेल्थ मेंटेन कर लेगा। मेरा अभी भी याद है, मैं जब आपको और विजय जी को पूछा था, क्योंकि आप सबसे हमारा, अगर इंडिया की बात करते हैं ना, सबसे पहले आप 2 भाई पहले हेल्थ की केयर किए थे। मेरा आज भी याद है, मैं विजय जी के साथ बैठ के पूछा भैया तुम क्या खाते हो, मुझे थोड़ा बताओ ना क्या खाते हो, मैं वही हिसाब से काम करूँगा।
So I have also taken training from you and from many other health conscious people. बस हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसलिए फूड सप्लीमेंट है, थोड़ी वॉकिंग करता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। फिर अभी मेरा 6 पैक की गोल भी है। वाओ, मैं 6 पैक की गोल करीबन 10 साल से पहले आया था, और अभी तक बार बार मैं फेल होता हूँ। मगर आने वाला 4-6 महीना, ज़्यादा टाइम लगेगा, 4-6 महीना 1 साल के बीच में करके दिखा दूंगा 6 पैक। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं रिकॉर्ड में ही बोलता हूँ ये सब चीज़, राइट। तो हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द लाइफ। भैया अगर समीर सर कोई वेलनेस का मॉडल ढूंढते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रमोद भैया है। हम तो पिछले 22 साल से आपको देखते आए हैं, जैसे थे ऐसे वैसे ही है, और 20 साल के बाद भी ऐसे ही रहेंगे आप। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात आपने बोला भैया, तो हम काफी संतुष्ट है आपका जवाब से। तो अगला सवाल के लिए ओवर टू नीना मैडम। या प्रमोद जी, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, राइटली सेड। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो पीपल स्किल हैं बहुत ही अच्छे हैं ऑल ओवर द इंडस्ट्री, नॉट ओनली मोदी केयर लेकिन फुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने देखा है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, यू नो, कितना आप जो भी कहते हैं पीपल टेक इट इन अ वेरी नाइस वे। तो आपको क्या मतलब, व्हाई डिड यू बिकम लाइक दिस? क्यों आपको ये जरूरी लगा कि पीपल स्किल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है? यस मैम, बात क्या है ना, जब मैं ज़िंदगी में खुद स्ट्रगल करता था, मैं हमेशा तकलीफ में रहता था। कुछ लोग मुझे मदद किए थे, कुछ लोग मुझे अच्छा बिहेव करते थे, कुछ लोग मुझे खराब बिहेव भी करते थे। तो मेरा समझ में आ गया था कि लोगों के दिल को जीतने के लिए लोगों की फ़ायदा देखना पड़ेगा, लोगों को प्यार से बात करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने में पैसा खर्चा नहीं होता है। और हम लोग इसलिए नहीं कि वो आदमी बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी, उसको रिस्पेक्ट करें, बात वो नहीं है। हम लोग एक अच्छा इंसान है, इसीलिए हम लोग दूसरे लोगों को अच्छा रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट देने में, प्यार से बात करने से तो कहीं तो दिक्कत तो नहीं होता है। तो मेरा भी अभी याद है, मेरा टीम के सब लोग जानते हैं, मैं जब मोदी केयर ऑफिस में को जाता हूँ ना, चाहे पैकर्स भी क्यों ना, मैं उससे हाथ उठ के नमस्ते करता हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने पैकिंग नहीं करेंगे सही टाइम में, हमको प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। सो ये मेरा क्लैरिटी है दिमाग में कि ये दुनिया में जिन जिन लोगों से भी थोड़ी मुझे मदद मिली है, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको अगर सोसाइटी कुछ मदद करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ये नहीं कि मुझे कितना मिलेगा रिस्पेक्ट, बात वो नहीं है। बात है कि सामने वालों को हम लोग कितना रिस्पेक्ट दें। ये हमारा कल्चर है, ये एक दिमाग की ख्याल है, कि सोच है, सिर्फ एटीट्यूड है, राइट। बस ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि हम लोग, मेरा जहां तक नीना मैडम मैं समझता हूँ ना, हम सब भगवान के परिवार से हैं। हो सकता है आज आप मुझे पहचान नहीं सकते हो, मैं आपको पहचान नहीं सकता हूँ, या सच यही है कि हम लोग भगवान के परिवार से, हम उसके बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे के नाते एक दूसरे को तो हम प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा से बात करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के रिलेशन भाई बहन की तरह है। यही यही मेरा मानना है, दैट द रीजन, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। और मुझे ये भी 1000% बिलीव है, इनसाइड मेरा यही बिलीव है, मेरा सोच भी यही है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब उसके परिवार से हैं। तो एक दूसरे के साथ हम लोग रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, राइट। बस मेरा सोच यही है नीना मैम। वेरी वेरी नाइस सोच प्रमोद जी, बहुत 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 करेक्ट बोला कि हम सब उसी परिवार को बिलोंग करते हैं, तो हम सब भाई बहन हैं। सो व्हाई शुड नॉट वी लव ईच अदर और ट्रीट ईच अदर नाइसली। बहुत वेरी नाइस। और आपने ये भी कहा कि कोई खर्चा तो नहीं है ना किसी को अच्छा बात करने में, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग, इट इज जस्ट यू हैव टू हैव अ गुड हार्ट, जो आपके पास है ही है। वेरी ट्रू प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस आंसर। और आपने ओल्ड मोदी केयर भी देखा, न्यू मोदी केयर भी देखा आपने, तो आप तो मतलब यू आर देयर विद मोदी केयर आई थिंक फ्रॉम 98-99। सो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और व्हाई इज आवर न्यू मोदी केयर रॉकिंग? प्लीज बताइए। ओके, देखिए, ये तो अभी तो वही टाइम की है, बस यही बताना चाहता हूँ कि द डिफरेंस इज ह्यूज, राइट। बहुत सा डिफरेंस है, कहाँ जहाँ से भी शुरू करूँ। वहाँ प्रोडक्ट था 5-7, अभी तो 400-500 प्रोडक्ट है, उससे ज़्यादा भी प्रोडक्ट आने वाले ज़िंदगी में। फिर अगर मैनेजमेंट की बात करें, नाउ वी आर गोइंग, तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट विथ अस। फिर समीर सर भी है, तभी भी शुरुआत में समीर सर थे, राइट। और प्रोडक्ट की आप फिर मार्केटिंग प्लान की अगर समझ में आता है ना, डिटेल्स में अगर कोई मार्केटिंग प्लान समझ जाएगा ना, वो कॉन्फिडेंटली खुद कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यहाँ 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ कमाने का चांसेस है। तो मार्केटिंग प्लान में डिफरेंस आ गया, प्रोडक्ट में डिफरेंस आया। तब डीपी नहीं था, इतना मोदी का ऑफिसर्स नहीं था, राइट। एजुकेशन सिस्टम भी तभी इतना भी नहीं था, इतना सक्सेस स्टोरी भी नहीं था।
मैं तो मेरा अभी भी याद है, मेरा जब ज्वाइन किया था मेरे सामने 4-5 सक्सेस स्टोरी थी। सुरेखा मैम की बात करता था, धीमन जी का और संजय बगड़े जी का और पूनम बिंदल, यही 4-5 स्टोरी लेके मैं जाता था। फिर जब मिला फिर आप लोग के साथ फिर आप लोग की स्टोरी शुरू किया मैंने। ज़्यादा स्टोरी तो मेरे पास नहीं था। तो नाउ अभी जो लोग ज्वाइन करते हैं ना मैम, अभी जो लोग ज्वाइन करते हैं दे आर सो लकी। सब कुछ चारों तरफ उनके पास है, प्रोडक्ट है, डीपी है, ऑनलाइन सर्विसेज है। तब तो ऑनलाइन सर्विस था ही नहीं। तब एक चेक मिलता था मंथली बोनस का, जो चेक में आता था, मानो कि जनवरी का मंथ क्लोज हुआ, उसको एनकैश करते तो हमको हो जाता था मार्च महीना। ये भी चैलेंजेस था। तो फिर बस ये तो डिफरेंस इज ह्यूज। एंड प्रेजेंटली दो न्यू जिन्होंने नया नया ज्वाइन करना, दे आर सो लकी कि इतनी बड़ी कंपनी में और सब कुछ अभी सही सलामत है। ओनली दे नीड टू गो टू पीपल एंड टॉक अबाउट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान, दिस मच। बस बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है वो जमाना में, राइट। वेरी ट्रू, इतना डिफरेंस है। वहां तो ना ऑनलाइन था, ना डीपी था, ना इतने प्रोडक्ट्स थे। अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर सो ब्लेस्ड, सो लकी, एवरीथिंग दे हैव। वेरी ट्रू प्रमोद जी, थैंक मेरा यू अभी वेरी भी मच। याद है मैडम, अभी भी याद है कि भुवनेश्वर में ऑफिस नहीं था। मैं कोलकाता जाता था बॉस में, कभी ट्रक में सामान लाता था, लोगों से पैसा कलेक्शन करके लेके वेरी जाता ट्रू। था। इट वॉज रियल टफ टाइम, बहुत टफ टाइम था। तो आज तो जैसे नया जमाना में सब कुछ हो गया, सब कुछ हाथ के आसपास हो गया। यहाँ तो अब क्या, रात को 12 बजे आप डाउन इनको कश्मीर में, दिल्ली में ट्रेनिंग दे सकते हो। तब तो वो सब कुछ नहीं था, तब फोन राइट। भी नहीं था जब हम लोगों ने ज्वाइन फोन किया, भी नहीं था यार, फोन भी था, नहीं। एक लैंडलाइन ही था। हाँ, और राइट हमारे राइट। कर्नाटका में, बैंगलोर में एक ऑफिस था। अभी तो ओके। देखिए एवरी 2-3 किलोमीटर्स में डीपीज खुले हैं। यानी यस। कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सो इजी फॉर अवर पीपल, बस उनको दे हैव टू ओनली रीच आउट, या प्रोडक्ट इज देयर एट योर डोर स्टेप। वेरी ट्रू प्रमोद जी। सो ओवर टू यू राजू। यस, थैंक यू मैम। प्रमोद भैया, शुरुआत में किस किस तरह का चैलेंजेस को आपने सामना किया, ताकि ये जॉब देने से बहुत सारा नया कंसल्टेंट और सबको एक सीख मिलेगा, आपसे बहुत कुछ सीख मिल सकता है, उसके ओके। बारे में थोड़ा बता दीजिए भैया। देखो जिंदगी इस तरह बना है ना, चैलेंज हर स्टेप में आएगा। अगर मैं आज ही बात करता हूं, मैं अगर कोई न्यू व्यूअर्स मुझे सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, उनके पास भी चैलेंज है। भाई हिंदुस्तान में जो सबसे अमीर इंसान, उनका पास चैलेंज है, राइट। एक IAS अफसर, उनका पास चैलेंज है। क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, सबके पास चैलेंज है। जिंदगी के हर दिन एक एक चैलेंजेस है, क्योंकि सक्सेस की पहले सक्सेस तक पहुंचने से पहले जो स्टेप आता है ना, उसको बोलते चैलेंजेस। और भगवान इस तरह चैलेंजेस इसलिए देते हैं कि हमको टेस्ट करना चाहते हैं भगवान कि ये सच में बंदा के पास दम है या नहीं। अगर एक चीज को हम ओवरकम करके जाएंगे, फिर दूसरा चीज, अच्छा चीज मिलेगा, फिर टेस्ट देंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब होता है, जिंदगी भर वी हैव टू फेस द चैलेंजेस। तो चैलेंज तो बहुत रहेगा, तभी भी था, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। बस अगर वो दिन की बात करता हूँ, चैलेंज की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया था भी नीना मैडम को, ऑफिस तो था नहीं, लोगों से पैसा कलेक्शन करके लेके मुझे जाना पड़ता था। लोगों ने पैसा नहीं देते थे। कुछ लोगों के कहना था कि अरे कंपनी पैसा लेके, मोदी का पैसा लेके भाग जाएगा। और ये भी लगता था कि लोगों ने बोलते कंपनी नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा। आज भी कुछ लोग ऐसे बोलते भी होंगे। तो फिर कुछ लोग बोलते थे प्रोडक्ट महंगा है। सच में है राजू भाई, मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट महंगा है। आजकल तो 100 ml वाला सब कुछ आ गया, मगर वो जमाने से 1 किलो वाला था, 750 1 किलो वाला सब कुछ था। मुझे भी लगता था, क्योंकि गरीब इंसान है, हमारा सोच था, गरीब सोच की तरह था हमारा। तो जब धीरे धीरे ये सब चैलेंजेस था, डिफिकल्ट चैलेंजेस था, जब मैं धीरे धीरे हर चैलेंज में ओवरकम इसलिए किया क्योंकि सुरेखा मैम में भी मैं ज्वाइन करने का 2 दिन के बाद मेरे ऑफलाइन एक थे मिस्टर नायक, वो सुरेखा जी के साथ मुझे फोन में बात कराए थे। जब मेरा ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट लिखा था ना, वो बोले थे कि सुरेखा जी है, धीमंत कापाड़िया जी हैं। तो धीमंत जी को फोन लगाए थे, नहीं मिला, और सुरेखा मैम को फोन लगा के बात की थी। सुरेखा मुझे बताए थे, मेरा कैसे इंट्रोडक्शन हुआ था सुरेखा के सामने। मेरे ऑफलाइन ने बोले कि मैम नमस्कार, ये प्रमोद आचार्य है, बिजनेस करता है, बहुत लाखों में कर्जा में फंसा हुआ है और आया है यहाँ 1 लाख इनकम करने के लिए। सुरेखा मुझे बोले प्रमोद जी नमस्कार, और मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहती हूँ। एक चीज़, ये बिजनेस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरी चीज़, मन लगा के काम करना, एक ना एक दिन आप लाखों में कमाएंगे। ये उनका बात सुनने में इतना एक्साइटेड था ना, क्योंकि वो जमाने में उनका हुआ था 1.5 साल मोदी कार में ज्वाइन करना, और उनका इनकम था 1,53,000 इस तरह कुछ था, 1.5 लाख से ऊपर था उनका इनकम, राइट। तो वो लेडी जब बोलते ना तुम कामयाब बन से लाखों में कमा सकते हो, तो आई वॉज हाईली एक्साइटेड, राइट। तो दोस्तों ये मेरा मन में था। फिर मोदी केयर की जो प्रोफाइल है ना, वो मुझे बहुत इंप्रेस करता था। और सुरेखा मैम मेरे पास थे, धीमन जी थे,
और ये भी बात है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग, मेरा क्या हुआ ना, उड़ीसा में थे 4-5 अपलाइन, उड़ीसा में थे 4 अपलाइन, उन्होंने काम छोड़ दिए। अभी तक मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ चुके हैं, राइट। जब मेरा ऑफलाइन काम छोड़ के जाते थे, डाउनलाइन मानो कि मेरा टीम में 20 लोग हो गए, 20 लोग से 15 लोग काम छोड़ देते थे, राइट। तो मेरा समझ में नहीं आता था, मगर यस, बिजनेस के कॉन्सेप्ट मेरा क्लैरिटी था, लेकिन इतना लोग आगे चला जाए वो मेरा समझ में नहीं था, पर क्लैरिटी था बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस मॉडल के बारे में मेरा भरोसा था। तो फिर काम में करते चला, मन में डाउट आया था कि कैसे इतना लोग क्यों छोड़ते हैं, अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो मोदी केयर में लोगों ने क्यों ज्वाइन नहीं करते, अगर ज्वाइन करते तो प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद करते। इसके बाद सर्च करने के बाद मुझे 80-20 रूल के बारे में पता चला, राइट। तो देन आई केप्ट ऑन वर्किंग, बिकॉज मेरा गोल इतना हाई था ना, कोई चैलेंज मुझे रोक नहीं सकता था। मेरा ड्रीम्स इतना बड़ा था ना, जब ड्रीम्स बड़ा होता है ना, सच यही राजू भाई, जब ड्रीम्स बड़ा हो जाता है ना, कोई चैलेंज आपको सामने दिखाई नहीं जाएगा, कोई चैलेंज दिखाई नहीं जाएगा। बिल्कुल भैया, राइट। यस तो भैया। चैलेंज मेरा सामने यही समझ लीजिए, चैलेंज मेरे लिए कि मुझे लगता है कि भगवान मेरा इम्तिहान लेने के लिए, मेरा टेस्टिंग करने के लिए और कोई पिन पॉइंट छोड़ा है, मुझे उसको ओवरकम करना है। मेरा सामने कोई भी चैलेंज आ जाए, मैं डरूंगा 4-5 मिनट, उसके बाद मेरा माइंड सेटिंग इस तरह हो जाता है कि मुझे लगता है कि यार इसको मुझे प्रूव करके दिखाना है, इसको क्रॉस करके जाना है चैलेंज को। नहीं तो आज देखो ये जानते हो, पेट में 6 पैक निकलना इतना आसान नहीं है, मगर मैं ओपनली, मेरा लोगों के सामने बोल चुके, मैं 6 पैक कर दूंगा 63 एज में या 64 एज हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये क्यों मैं करता हूं, मुझे मालूम है कि चैलेंज को ओवरकम करेंगे तो वहां सक्सेस मिलेगा। आज जितने भी लोग लाखों करोड़ में कमाते ना हिंदुस्तान में मोदी केयर के जरिए से, क्या आपको लगता है उनका पास चैलेंज आया नहीं होगा? अरे हर चैलेंज उनका पास भी आया होगा, मगर इस तरह माइंड सेटिंग चाहिए ना, हर चैलेंज को हमको ओवरकम करके जाना है। दिस इज माई थॉट भाई, दिस इज माई थॉट। बिल्कुल सही है भैया, आपका बॉडी लैंग्वेज में इतना पावर है, कॉन्फिडेंस है, अमेजिंग, यू कैन डू एनीथिंग। तो जो आपका 12 अपलाइन छोड़ के चले गए ना, क्या इतना बुरा हालत हो गया होगा भैया। आपका नाम बोलते हुए एटलीस्ट वो टिके रहते थे ना कि मैं प्रमोद जी का अपलाइन हूँ, ऐसा बोलने से कितना इज्जत मिलता था, कितना बिजनेस को खड़ा कर सकते थे। पता नहीं, उनका तो बुरा नसीब है और गलत फैसला उनका, वो छोड़ दिया। क्या तो होता है ना करें राजू भाई, क्या प्रैक्टिकली क्या होता है, एक सिचुएशन पर लोगों की सोचने का तरीका अलग हो जाते हैं। जी भैया। देखिए मेरे अपलाइन मुझसे पहले आए थे, उनका पहले क्या सोच होगा, पहले ही सोच होगा हाँ बिजनेस काम करेगा, तो एक्साइटेड भी थे, कुछ लोगों को ज्वाइन कराए थे, नहीं तो मैं उनका टीम में कैसे आया। मगर जिस टाइम उन्होंने छोड़े होंगे, उनका दिमाग में ये गया होगा नहीं यार ये बकवास से चलेगा नहीं बिजनेस। जब उनका दिमाग है कि बिजनेस चलेगा नहीं, मेरा दिमाग है मैं करके दिखा दूंगा, वही तो डिफरेंस है। आज मेरा बिजनेस की मेरा रुपी सेल होता है हर महीना की 20 करोड़ से 25 करोड़ की सेल होता है ऑन एन एवरेज। अगर आज भी उन्होंने वही होता ना, उनका तो 25 करोड़ की सेल होता है, तो उनको तो कुछ फायदा मिलता, मगर उन्होंने दे कुडंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस, दैट द सोल पिटी, राइट। तो ऐसे समझने की बात होता है, जो आदमी समझ जाएगा उसका जिंदगी बदल जाएगा, जो नहीं समझेगा आम इंसान की तरह जिंदगी बिताएगा, यही तो सीधा पाठ है भाई। सही है भैया। तो अगला हम निकलेंगे भैया कि आपके साथ मतलब समीर मोदी सर, के मोदी सर के साथ बहुत कुछ मुलाकात होता रहता था, हमेशा के लिए ज्यादा कांटेक्ट में आते थे के सर और समीर सर के साथ। कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस जो हुआ है उनके साथ, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए भैया। या मैं बहुत खुशनसीब हुए सवाल की जवाब देने के लिए। मेरे जैसा आम इंसान को मौका मिला करोड़पति लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ बैठने के लिए। अगर मैं 2 जन के बारे में बताऊंगा ना, समीर सर और के सर, दोनों ही गढ़ली मैन है, दोनों ही गढ़ली मैन है। वो इतना फोकस था। अभी देखो, एक मैं सच और एक बात, दिल की बात बताना चाहता हूँ। वो जमाना में क्या आपको लगता है नहीं कि हिंदुस्तान में और भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मगर उन्होंने ये सोच नहीं सके कि ऐसे के बिजनेस करेंगे जहां आम इंसान की जिंदगी बदल जाएगा। मगर तब के सर, समीर सर ये सोच लिए थे कि हाँ यार मुझे कुछ करना है ताकि हिंदुस्तान में लोगों की जिंदगी बदले, राइट। और मैं समीर सर के बारे में यही तो कहना है कि मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मेरा टीम में बहुत बार कह चुका हूँ, समीर सर मैं श्योर हूँ, मतलब मेरा विश्वास लेवल यही कहता है कि शायद समीर सर उनका पिछले बार्थ में वो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो शायद उनका सपना अधूरा था लोगों को फ्रीडम देने के लिए, जो आज ये जन्म में पैदा हुए कि ताकि लोगों को फाइनेंशियल आजादी दिला के रहेंगे। अरे यार वो तो ये सच में ये देखो, इतना बड़ा इंसान, कोई गरीब लोगों को, बच्चों को साथ में लेके खेलते, कंधे में डाल के खेलते हो, इतना प्यार करते, इतना दिल वाला है।
अरे ऐसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है बोलो हिंदुस्तान में, कोई एक की नाम ले लो जो अपना फोन नंबर सबको देता है? नहीं देता है ना। तो हम लोग लकी है, बहुत लकी है कि समीर सर, के सर के साथ हमको मिलने का मौका मिला, उनका साथ बैठने का मौका मिला, खाने के लिए मौका मिला, उनका घर को जाने के लिए मौका मिला। अमेजिंग पर्सनालिटी, राइट। बस यही बताता हूं कि उनका जिंदगी में, उनका परिवार में हर खुशी आ जाए। उन्होंने जो सोचे नहीं कि उससे भगवान ज्यादा खुश था, और मिलेगा ही उन लोग को। कितना लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। सो आई एम लकी एनफ राजू भाई, आई एम लकी एनफ कि उन लोग के साथ मुझे मिला बैठना। और आप भी तो हमारे साथ ही जाते थे, नीना मैम भी थे, हम सब तो उनका बोर्ड रूम में बैठते थे। दे आर अमेजिंग पर्सनालिटी, राइट। वी आर सो लकी दैट वी कुड गेट अ चांस टू सिट विद देम, टू टॉक टू देम, टू वर्क विद देम, राइट। सो सही बोले भैया कि हम भी वही विश्वास रखते हैं कि समीर सर इनकारनेशन ऑफ द गॉड बोल सकते हैं। और शायद पिछले जन्म में वो फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, तो इस जन्म में हमको हमारा गॉड फादर होके हमका सबका ख्याल कर रहे हैं। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा बात बोले आपने। ओवर टू नीना मैम। थैंक यू प्रमोद जी, वेरी नाइस। समीर सर और के मोदी सर का दिल इतना अच्छा है और भगवान बहुत खुशियां लेके आए उनके घर में, वेरी वेल सेड। और अब हमारा ये जो 1000 मिलियनर्स का मिशन, हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, या हमारा जो बैकड्रॉप आपको नजर आ रहा है, तो ये हम लोग समीर सर के बर्थडे के दिन चाहते हैं कि हम इसको सेलिब्रेट करें और लॉन्च करें। तो आप you're aware about it, प्रमोद जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सब उन कंसल्टेंट्स को जो इस 1000 मिलियनर मिशन के आगे बढ़ रहे हैं? कैसे और क्यों इस मिशन को फुलफिल करना चाहिए? प्लीज। ओके, सबसे पहले मैं कर्नाटका लीडरशिप को थैंक देना चाहता हूँ, नीना मैम, फिलिप भाई एंड राजू जी, विजय जी, चंद्रू जी, जो आपने डिसीजन लिए है ना कि 1000 मिलियन में क्रिएट करना। मैं जिस दिन तो सुनना, मैं हाईली एक्साइटेड एंड सच में ये जो आपका मिशन जो है ना, इसमें इतना पवित्रता भरा हुआ है ना कि लोगों को आप लाखपति बनाना चाहते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये बिजनेस में लाखपति बनना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जब 23 साल पहले 4 महीना में मैं 39,000 की इनकम पहुंचा था 4 महीना में, जिसका वैल्यू आज का तारीख होगा 1.5 से 2 लाख। अगर वो जमाना में 2-4 प्रोडक्ट को लेके हर तकलीफ के बावजूद में 4 महीना में पहुंच सका 39,000 में, आज का तारीख में एक इंसान 4 महीना में भी 1 लाख इनकम पहुंच सकता है। तो मैं दोस्तों आप लोग ही बताना चाहता हूं, मैं भी हर व्यूअर का बताना चाहता हूं, कर्नाटका लीडर को बताना चाहता हूं कि जब समीर सर आएंगे ना, जिस दिन समीर सर आएंगे ना दिसंबर महीना में, दोस्तों आज आप चाहेंगे जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एग्जैक्टली 4 महीने में आप लोग के पास है। अगर आज आप नया भी ज्वाइन किए ना तो 4 महीने में आपकी 1 लाख इनकम हो सकता है। दोस्तों मेरा जिंदगी तजुर्बा है, दोस्तों ये मेरा जिंदगी तजुर्बा है। और ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मैं वही प्रमोद आचार्य हूं। जब मैं स्ट्रगल करता था उड़ीसा में, जब हमारा टीम स्ट्रगल करता था उड़ीसा में, मैंने गया था फिलिप जी, राजू जी, चंद्रू जी, विजय जी से मैं ट्रेनिंग लेने के लिए मैं गया था। उनका ऑफिस में बैठा था, सीखा था, कागज में लिख के आया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप सब जो जहां भी आप रहे, तो कर्नाटक में रहो, कहीं भी रहो, अगर राजू जी, फिलिप जी की, विजय जी की टीम से आप हो तो आप सरेंडर कर लो, सरेंडर कर उनका पास। वो जो बोलते ब्लाइंड बिलीव कर लो, दिमाग में ठोक लो कि वो आप, मैं तो बता, मैं गारंटी दिला सकता हूं यार कर्नाटक के लीडर के ऊपर, वो किसका बुरा नहीं कभी नहीं देखे हैं, ना देख भी सकते हैं। मेरा अभी भी याद है जिस दिन राजू जी बताए थे, राजू जी, चंद्रू जी जब बताए थे, के सर को बताए थे कि सर हमको छोड़ दो, हम लोग कंपनी चला लेंगे, और अकेला भी कुछ महीना था ऐसे जो कंपनी बिना सपोर्ट भी इन्होंने करके दिखा दिए थे। वही जी राजू डे जी, फिलिप जी, डॉक्टर फिलिप जी, नीना जी एंड विजय जी, चंद्रू जी, यही सब है। तो आप सरेंडर कर लो उनका साथ। और नीना मैडम जैसे बोले ना, ये जो 1000 मिलियनर का कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। अरे आज नहीं हुआ तो क्या हो गया, अरे हो जाएगा तो ना। अगर मैंने जो सीखने गया था बैंगलोर लीडर्स में सीखने गया था, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर बैंगलोर और कर्नाटक के लीडर से है, और आप लकी हो कि आप उन लोगों की टीम से हो। सरेंडर कर दो खुद को सरेंडर कर दो। ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बदल जाएगा, आपकी जिंदगी हर सपना पूरा होगा। और नीना मैम, रेस्ट एश्योर्ड, उस दिन कितना मिलियनर निकलेंगे पता नहीं, मगर बहुत सारे मिलियनर निकलेंगे। जो चाहेगा
वही कि मिलियनर निकल सकता है, राइट। एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये मिशन लिए हैं कि लोगों की कितना मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच नीना मैम, राजू भाई, फिलिप जी, सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बड़ा मिशन लिए हैं। थैंक यू प्रमोद जी। सबसे पहले तो ये मिशन का जो ड्रीम है हमको रिजल सर ने दिखाया, हमारे जो रीजनल हेड है साउथ Okay. के, उनका ये Okay. ब्रेन, उनका ये बेबी था, उन्होंने शुरू किया और हम सब पूरे साउथ के लीडरशिप, नॉट इन कर्नाटका, ये साउथ का मिशन है, तो साउथ का फुल लीडर्स ने डिसाइड किया कि यस वी हैव टू गो अहेड, क्योंकि किसी का भी आइडिया हो, इट रियली डजंट मैटर, लेकिन हमारे बेनिफिट तो हम लोगों को सबको होगा। और जैसे आपने सही कहा कि 1 लाख इज नॉट डिफिकल्ट, बस हमको ठान लेना है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वी हैव टू स्टार्ट, हो सकता है कि वी डू नॉट रीच अ मिलियनर बाय डिसम्बर, बट द आइडिया इज टू स्टार्ट, and when you start you will reach your goal, no doubt about it. You just have to keep running, you will reach your goal. So very well said Pramod ji. So I am sure हम हमारे सब, नीना मैडम, रिजिल सर को मेरे तरफ से थैंक्स दे दीजिएगा इतना बड़ा आइडिया के लिए, राइट। अगर रिजिल सर आप मुझे सुन रहे हो, स्पेशल थैंक्स टू यू, राइट। रिजिल सर, सुब्रतो सर, ऑफ कोर्स उन्होंने भी हमको बहुत पुश किया, बहुत मोटिवेट करते हैं। आई मीन उनके बिना तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रीम सो बिग और टू टेक गुड बिग एक्शन। सो आई आल्सो वांट टू थैंक देम ऑल, डेफिनेटली प्रमोद जी, एंड थैंक यू। यस प्रमोद जी, सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से ये मैसेज दिया हमारे सब कंसल्टेंट्स को, एंड आई एम श्योर दे जस्ट हैव टू स्टार्ट। ये मैसेज सबको चला गया कि स्टार्ट तो करना है, पहुंचेंगे तो जरूर अपने गोल पे, शुरू किया तो डेफिनेटली यस। थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी। और अब नेक्स्ट सवाल जो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि वेयर डू यू सी मोदी केयर एंड MLM इंडस्ट्री बाय 2025? और यहाँ वो आपके सवाल आंसर करने से पहले डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जो अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा जी, मतलब शी इज वन ऑफ द टॉप, इतना इन द MLM इंडस्ट्री, इतना कुछ उनसे जो सीखने को मिला, और वो जो विजन हमको दिखाती है मोदी केयर के बारे में, वो तो रियली कमाल का है। तो आपका क्या कहना है कि वेयर विल मोदी केयर बी इन द ईयर 2025? बस मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज जो बिजनेस होता है मोदी केयर की, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टाइम्स। आज लीडर जो कमाते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 6 टाइम, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होने जा रहा है। ये कोई भी अंदाजा लगा नहीं सकती कितनी बड़ी होने वाला है। मैं जो भी फिक्र बताऊंगा ना अभी मैडम, ये छोटा पड़ेगा, आने वाला 5 साल 10 साल में आपको समझ में आ जाएगी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कहाँ कहाँ लोगों की जिंदगी बदल सकता है, राइट। यस प्रमोद जी, वेरी ट्रू, द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट, और हर कोई जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगा अपने सपनों को पूरे करने के लिए, आई एम श्योर दे विल अचीव इट। तो हम सब लीडर्स का यही बस एक गोल और एम है कि सबको करेक्ट पिक्चर ऑफ मोदी केयर पता चले, नजर आए, और यानी कि सिर्फ आपको आंखों से नहीं देखना चाहिए, दिमाग और दिल से देखिए कि दिस इज द फ्यूचर इज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी। ओवर टू यू राजू। थैंक यू सो मच नीना मैम। प्रमोद भैया, आपने 1000 फ्यूचर मिलियनर्स के लिए इतना अच्छा इनका भरोसा बढ़ा दिया, बढ़ोतरी दिया कि ऑलरेडी हम लोग फील कर रहे हैं कि 1000 लोगों ने मिलियनर्स को हमने क्रिएट कर दिया है। समीर सर के साथ हम सब लोग ऑलरेडी मौजूद है, ऐसा लगता है। मेरा मन कर रहा है उस दिन, हो सकता है भगवान भला करे आप भी आ जाएंगे उस दिन, क्योंकि आप हमारा प्यारे भाई हो, हमारा अपलाइन से कोई कम नहीं हो, आप तो यूनिवर्सल अपलाइन हो। भगवान भला करे, हमारा इच्छा पूरा कर देगा। थैंक यू सो मच। डायरी में वो डेट नोट कर लीजिए, आपके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे प्रमोद जी, आप लोगों को जरूर पहुंचना है यहाँ। थैंक यू रीना मैडम, थैंक यू सो मच, राइट। इतना खुशी मिलेगा ना हमारा लोग, इतना हम समीर सर के साथ, प्रमोद भैया के साथ, हमारा सुरेखा मैडम, फिलिप सर, नीना मैडम, हमारा टॉप लीडर्स, इतना मतलब हम मोदी केयर का तो बहुत सार्थक दिन होगा उस दिन। थैंक यू सो मच नीना मैडम, थैंक यू सो मच फिलिप सर, थैंक यू सो मच प्रमोद भैया। भैया ये अभी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका मतलब तहे दिल से कुछ मैसेज इन शॉर्ट चाहिए हमारा गेस्ट के लिए, कंसल्टेंट के लिए, लीडर्स के लिए, आपका लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए भैया? ओके, लास्ट मैसेज यही है राजू जी, लास्ट में यही है, जो आज सुरेखा जी की प्रेजेंट है ना जी, आज जो बंदा नया ज्वाइन करता है उनका भविष्य भी वही है। जो आज सुरेखा जी को मिला है, आने वाले दिनों में हम सबको आज कोई नया आदमी ज्वाइन करेगा उनको भी वही मिलेगा।
मेरा अभी भी याद है, अरुण जी बहुत बार बोला करते थे कि जो मोदी करके टॉप अर्नर बनेगा वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक शायद स्पॉन्सर नहीं हुआ है। बस एक सिंपल लाइन समझ लीजिए, जितने भी लोग मुझे सुनते हो ना, यही समझ लीजिए, आज सुरेखा मैडम की जो प्रेजेंट है ना, जो उनको मिला है ना, वही सब मिलेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में मे बी आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, यही सब हम लोग ही मिलेगा। बस यही मेरा मैसेज है, जी जान लगा के काम करना, जी जान लगा के काम करना, और लगातार काम करते रहना दोस्तों। चाहे आपकी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे आपकी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर सपना, हर एक सपना आपकी पूरा होगा दोस्तों। मेरा यही मानना है, अगर सपना एक बार दिमाग में बन गया, वो एक ना एक दिन पूरा होकर रहेगा, चाहे किसको कितना भी साल क्यों ना लगे। हाँ बिल्कुल भैया, थैंक गॉड, मतलब इतना कुछ विश्वास दिलाया, इतना कुछ विजन दिखाया। ये सच होगा कि आज सुरेखा मैडम का जो प्रेजेंट है वो हम सबका फ्यूचर है। ये काफी है हमको एक्साइट होके और हार्डवर्क करने के लिए और मेहनत करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच प्रमोद भैया, आपसे इतना कुछ हमको सीखने के लिए मिला है। मैंने तो इतना कुछ मैं नोट किया हूँ, ऑलरेडी 6 पेज मेरा भर चुका है। तो हमारा दर्शक, हमारा सारा मोदी केयर परिवार भी इतना सारा आपसे लिए होंगे, बहुत सारा लिखे होंगे। थैंक यू सो मच प्रमोद भैया, हमारा डिजिटल चैनल पर आने के लिए। और तहे दिल से हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। जितने भी आपको धन्यवाद दे वो बहुत कम होगा, शब्दों में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपका परिवार को, आपका पूरा टीम के लिए हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और भैया हम अगले जो सेमिनार है, हम मंजुनाथ शेट्टी जी का सेमिनार करने वाले हैं। तो 15 दिन के बाद 18 सितंबर, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे प्रमोद जी? मंजुनाथ शेट्टी कनाडा में हम करने वाले हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अब आपको बस राजू जी यही बोलना चाहता हूँ, व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूँ, दोस्तों में जितने लोग सुनते हो मैं सबको ही बताना चाहता हूँ, ये जो मंजुनाथ शेट्टी जी है ना, ये इतनी पावरफुल है और इनका स्टोरी इतनी पावरफुल है दोस्तों। हर माने कोई भी आदमी उनसे सुनेगा, उनका दिमाग चेंज हो जाएगा। तो मैं सबसे पर्सनली रिकमेंड करता हूं, ये जो 18 सितंबर को जो होने वाला है सेमिनार, राजू का चैनल में सेमिनार होने वाला है दोस्तों, आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। ये स्टोरी, इनका सक्सेस स्टोरी इतना अच्छा लग गया दोस्तों, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। मैं बताया था ना तब, मैं इनका फैन हूं। इनसे कुछ ना कुछ मैं सिखाऊं दोस्तों, कुछ ना कुछ सिखाऊं, ताकि वो बिजनेस में मुझे माइलेज दिया है दोस्तों, मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद किया है। तो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू, तो आप लोग वो दिन टाइम निकाल के मंजुनाथ जी शेट्टी जी का आप ये प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। राजू जी जाते जाते आपको थैंक्स बताना चाहता हूं कि सच में मैं कर्जदार हूं आप लोग के पास, क्योंकि वो टाइम में जब उड़ीसा की बिजनेस गिरता था, अगर तब आपकी हिम्मत, आपकी सपोर्ट, आपकी कोचिंग मुझे नहीं मिलता, शायद मुझे बिजनेस बढ़ाना बहुत तकलीफ हो जाता। तो आई एम एवर ग्रेटफुल टू ऑल कर्नाटका वर्ल्ड लीडर्स, एंड स्पेशल थैंक्स भी देना चाहूंगा न्यू लीडर्स को, क्योंकि न्यू लीडर्स आने के बाद हम लोग की हौसला बढ़ा। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना, लगातार काम करते रहना, चाहे आज हो, काल हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा। थैंक यू सो मच प्रमोद भैया, आपने भी हमको इतना प्यार दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, एक्सपोजर दिया है। मेरे को कम से कम 10-12 बार उधर बुलाया है। मेरे को तो सेकंड होम टाउन जैसा मैं फील करता हूँ। हमारा चंद्रू जी को बुलाया, नटराज जी को बुलाया, विजयलक्ष्मी रेड्डी मैडम को बुलाया, ऑल ओवर इंडिया का टॉप लीडर्स को उधर बुला के सम्मानित करते हुए प्लेटफॉर्म दिया है। और तहे दिल से, जैसा मंजुनाथ शेट्टी के बारे में आपने बात किया, हर लीडर को आप तहे दिल से स्वागत, आप अप्रिशिएट करते हो। सो थैंक यू। और आप सबका परिवार के लिए आपका जो लीडरशिप है हमेशा हम याद करते हैं, वो संजय साहू जी हो, तपन दास जी हो, सुदर्शन पत्रा जी हो, अक्षय नायक जी हो, हर एक लीडर हमारा दिल में बस गए हैं। सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोल दीजिए, आपका परिवार के लिए भी। थैंक यू वेरी मच प्रमोद भैया फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू नीना मैडम, नमस्कार, थैंक यू, लव यू इन लॉर्ड्स। थैंक यू थैंक यू सो मच, अपने टाइम देने के लिए, इतने अच्छे मैसेजेस दिए आपने। थैंक यू सो मच वंस मोर। Thank you so much Neena madam for having joined with us, and the kind of natural way of interaction you did, it's really amazing. I learned a lot because of your interaction. Thank you so much Neena madam for joining with us and having a great wonderful interaction. Thank you madam. Okay, friends, all over India Modi Care family, thank you very much for joining with us. And friends, ivaga next ಸಾರ್ಥಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೋ ಗೆಟರ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್, ಯೂತ್ ಐಕಾನ್, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯೂತ್ ನ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ, ಆ ತಾಲೂಕು, ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನನೇ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಟೀಮಿನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯವಂತ ನಾಯಕ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತು ಈಗೇನು ಪ್ರಮೋದ್ ಭಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೀರಾ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಬುಧವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕು 8:50ಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿ. ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಭಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇವರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹಲವಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 35 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಬ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕನಸು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು LIC ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1250 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಓಕೆ, ನಿಹಾರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿರಲ್ಲ, ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಜಮಾನ ಮೋದಿ ಕೇರು. ಆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 4 ರಿಂದ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದಾಗ, ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೇ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಅವ್ರು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜು ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಭಯ್ಯ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕೆಳ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಲೀಡರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಟೀಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೃದಯವಂತ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ನ ಎತ್ತಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂತ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ. ಅದೇ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವರು ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.com ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದೇ ತರ ABCD ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಕಲ್ತಿದ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ PUC ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 18 ವರ್ಷಗಟ್ಟ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 50,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಒಂದು 40 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕಾರ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ 3 ರಿಂದ 4 ಮನೆಗೆ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂತು, ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಏನ್ಕೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಜನಾನುರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಶಸ್ಸನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಜನಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಲವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಬಚ್ಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹುಡುಕ್ಲಿ? ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕಲ್ಚರು, ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಚರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೂ ಹೊಸ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಕತ್ತಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸುಮಾರು 800-1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ದೂರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಳೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ 4-5, ಓಕೆ, ಸಂಜಯ್ ಬಗಾರಿಯಾನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ 2, 3, 4, ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್, ಈ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಡಿಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಚಾಲೆಂಜು, ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲು ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಥ್ರೆಟ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ KK ಮೋದಿ ಸರ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋದಿ ಕೇರಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ KK ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಡರ್ಗಳು ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೀಡರ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾರು, ಚಂದ್ರು, ರಾಜು, ವಿಜಯ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿದೀವಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ಆ ತರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆನೆಬಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಕೂಡ 12 ಜನ ಅಪ್ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈನ್ ಏನೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ಹೆಸರು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ ನಿಮಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದಿನ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ತೀರಾ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಪವರ್ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇವರಿಗೆ ಏನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಗೋಲ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಗೋಲ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಿಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಸು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 63-64 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ನಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ತರ ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್, ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರವರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ತರದೊಂದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಜಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಹೊಸಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವತ್ತೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತೇನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನ 10 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ 10 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್, ಸಕ್ಸಸ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ರೀಚಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಿಷನ್ 1000 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆದ್ರವರು. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಭೂಮಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಮೇತ ಬರಂತ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ರಾಜು ವಿಜಯ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಮೋ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಂತ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಲೀಡರ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಹೃದಯವಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಲೀಡರ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು 1.25 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, 10 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಲೀಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲಿಕೆ ನಾವೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಿಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 8:50ಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೀನಾ ಮೇಡಮ್, ಫಿಲಿಪ್ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್, ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಸರ್, ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್, ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್, ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮಹಾನ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಹರ್ ಘರ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಸರಸ್ವತಿ ಹೊಲಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಹೊಲಿತಾಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್.